Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, take out your book, open page number 92. Take one rough copy also, so that if you want to note the points, you can note down the points from the board, because these points help you that you can understand the topic more simple way. So, student, today date is 28/10/2020. I am teaching you chapter 17. Name of the chapter is the earth and sky. Name of the chapter is the earth and the sky. So, student, before starting the chapter, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So, how much time? Anyone can tell how much time is taken by sunlight to travel through space and reach us? Oh, many students raise the hand. Very good. Excellent performance. Yes, your answer is right. Okay, student. Sunlight takes just over 8 minutes to travel through space and reach us. It is given in your book. And what is sun energy called it? This is a homework for you in online classes, because I tell you each and every importance of the sun. सन क्यों इतना हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है हमारे प्लेनेट अर्थ के लिए. ईच एंड एवरी पॉइंट्स आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड एंड आई एक्सप्लेन यू. सो एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए. व्हाट इज द सन्स एनर्जी कॉल्ड इट? जो सन से हमें एनर्जी मिलती है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनर्जी? आई विल डिस्कस दिस विद यू इन ऑनलाइन क्लासेस. ओके, सो स्टूडेंट, we learn that why the sun is very important to us, because due to the sunlight plant can prepare their own food, and this process is known as photosynthesis. In the presence of sunlight, air, water and minerals, plant prepare their own food, and the plants are the only producers. Plants are the only producer. What are plants? Plants are producers. Plants are producers. And we human beings, animals, we are directly or indirectly depends on the plant for our food. Again, after that, water cycle, it is a continuous process, and I have already given you full explanation of this topic. What is a water cycle? And if there is no water cycle, then life is possible on our planet? So again, the answer is big no. So how this water cycle starts? This water cycle starts due to the
sun heat. This water cycle starts due to the sun heat, because there are three states of water: solid, liquid, gas. Solid, ice form; liquid, water; gas, known as water vapor. So water change from one form to another, and this is due to the heat of the sunlight. And we know that right temperature and water is required for the germination of the plant or germination of a seed. सीड कब ग्रो करता है? जब सॉइल हो, सॉइल में वाटर हो, राइट टेम्परेचर हो, देन ओनली द बेबी प्लांट जर्मिनेट फ्रॉम द सीड. सो और ये वाटर आता कहां से है? दिस वाटर comes in the form of a rain from the clouds. ठीक है ना? It comes in the form of a rain from the clouds. So all these things are possible due to, and this process is known as water cycle. With the heat of the sun, water evaporates and change in the form of a vapor. When it change in the form of a vapor, it become very light, हल्का हो जाना. जब गैस फॉर्म में वाटर होता है तो उसका वेट बहुत लाइट होता है. So it rises up in the sky, and when it come in touch with a cool air, then what's happened? The water condenses, and this process is known as condensation. The change of water vapor into water on cooling, ठंडे होने पे, and these tiny drops of water join together to form a clouds. And when these drops of water become very heavy, so they start coming down in the form of a rain. And the places where the temperature is very cold, in that places it also come in the form of a snow. So we have discussed, and another more important point, that is sunlight give us natural light and heat. In cold days, you are burning the wood to get the heat, or if you are inside your house, maybe you are using room heater, so for that you are paying the electric bill also. For burning the wood, you have to buy the wood from the market. But student, have you listened that you are paying money for the sunlight or sun heat? No, because sun is a natural resource. It is present in the nature. It is present in the nature. So we are getting this all thing free of cost. We are not paying any amount of money for that. Is it clear, student? Now student, after that we discuss about the planets. Few important things which I want to recapitulate with you. First is the planet do not have their own light. So the light on the planet is the light of the sun. Okay, and in a clear sky
you see lot of twinkling light in the sky in a clear sky in the night time. So what is this? These are stars. But why their light is so less? Reason is these stars are very, 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 very far away from our planet, that is Earth. Is it clear? And that is the reason in the night we see that type of light in a clear sky. So the only star which is close to us, that is sun, and we study this thing is also in solar system also. The sun, 8 planets and their satellites, this family is known as solar system. This family is known as solar system. Okay student, after that we discuss the different name of the planets, and even we write, even I have given you one homework also, that when you draw a solar system you write the right order of the planet from the sun. First is Mercury, then Venus, then our planet, that is third, is known as Earth. After Earth, Mars, then Jupiter, then Saturn. After Saturn, seventh one is the Uranus, and last one is the Neptune, because Pluto is not in the list of a planet. वो बहुत स्मॉल है, इसलिए उसको इस लिस्ट से हटा दिया गया. इज इट क्लियर? ठीक है. अब देखो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मून के बारे में. वी विल डिस्कस अबाउट द मून. मून टॉपिक द so student, so note down some important points. First of all, moon is the natural satellite. Moon is the natural satellite of our planet Earth. Moon is the natural satellite of our planet Earth. Second, it is dry and barren. It has, first of all, I am writing this point, then I will discuss this point with you. It has no air or water. It has no air or water. It has no light of its own. Okay.
It shine because it reflect the sun's light. Because it reflects sun light. Okay. Now student, we will discuss all the points one by one, so for your better understanding. ऐसे क्या होता है ना, हम एक पैराग्राफ पूरा एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो फिर आप खोजोगे कि सर ने किस लाइन के बारे में क्या बताया. मैंने पैराग्राफ के ही पॉइंट्स बना दिए. नाउ यू हैव ए नॉलेज ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हाट इज गिवन हियर. इज इट क्लियर? दैट इज द रीजन मैंने आपसे क्या बोला. आप सोचते होगे सर बुक में भी दिया है, सर पॉइंट्स भी करा रहे हैं. दैट इज फॉर योर बेटर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग. इफ आई जस्ट रीड फुल पैराग्राफ एंड इफ आई गिव एक्सप्लेनेशन तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे किस लाइन के बारे में बता रहे हैं. अब हियर इज नो चांस ऑफ कंफ्यूजन. वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन इट यू. इज इट क्लियर? नाउ come to the firstly let recapitulate about solar system. In solar system I told you that the sun family, 8 planet and their natural satellites, that is known as solar system. So student, मैंने बोला था ना वहां वर्ड यूज किया था कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं किसके, प्लैनेट्स के. तो ये पूरे मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं. ठीक है. अब आवर प्लैनेट नेम इज अर्थ. नेम ऑफ आवर प्लैनेट इज अर्थ. सो अब आप इसे हमेशा याद कर लो. मून क्या है, एक सैटेलाइट है. व्हाई आई से इट इज ए नेचुरल सैटेलाइट, क्योंकि इट इज प्रेजेंट. ठीक है, ये अपने से है, हमने नहीं बनाया है, इसलिए नेचुरल है. जैसे हिल्स हैं, वाटर हैं, माउंटेन्स हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, हमने बनाए हैं? नो. ह्यूमन एक्टिविटीज के सुन लो, आपके घर में बहुत सी चीजें मिल जाएंगी. देर आर मैनी थिंग्स इनसाइड योर किचन आल्सो. टेबल है, फैन है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड, अलमीराज, टीवी, प्रेशर कुकर. देर आर मैनी थिंग्स which we say as a man made things, but the things which are present in the nature that are known as natural things. So we have not made a moon हमने नहीं बनाया है, अपने आप है. ठीक है, इसलिए इसे नेचुरल सैटेलाइट बोला. अगर बाई चांस हमने बनाया होता तो उसका नाम हो जाता सैटेलाइट. इज अ कॉमन वर्ड होता, एक वर्ड उसमें जुड़ जाता, हमने बनाया है ना, मैन मेड सैटेलाइट्स. और आपको पता ही है कि हमने बहुत से सैटेलाइट्स भेज रखे हैं ऊपर, भेजे हैं ना. सो दैट सैटेलाइट टेल द एग्जैक्ट पोजीशन एंड व्हाट आर द वेदर कंडीशंस और व्हाट आर द. तुम लोग घर बैठे बैठे फॉरेन कंट्री में मैचेस हो रहे होंगे. आजकल आईपीएल चल रहा है, इंडिया में नहीं ना हो रहा है कोरोना की वजह से, बट यू आर एबल टू वॉच ऑल द मैचेस. तो ये सब लाइव टेलीकास्ट आपको कहां से मिल रहा है? फ्रॉम द सैटेलाइट्स. Is it clear? So that are man-made satellite, उसको हमने बनाया है. That are man-made. So moon क्या है? Moon is the natural satellite of our planet Earth. तो अब natural satellite का मीनिंग सबको क्लियर हो गया होगा कि man-made नहीं है, हमने नहीं बनाया. It is present. Okay, we have not made it. That is the word I use, natural satellite of our planet अर्थ. अब देखो सैटेलाइट का वर्क क्या है. मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट किसका है? अर्थ का है. तो हमारी अर्थ क्या कर रही है? अर्थ इज टेकिंग. अर्थ क्या, अदर प्लैनेट्स की भी बात करो तो जितने भी प्लैनेट हैं ऑल ऑफ देम आर टेकिंग राउंड ऑफ द सन. सब सन के चारों तरफ क्या लगा रहे हैं? राउंड लगा रहे हैं. जिसको मैंने क्या बोला था, व्हेन a planet revolve around the sun
दिस इज नोन एज दिस मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट, इसको मैंने बताया था रिवॉल्यूशन बोलते हैं, REVOLUTION, revolution, the movement of the planet around the sun, that is known as revolution. ठीक है। एंड एक चीज और बताई थी, एवरी प्लैनेट मूव इन इट्स फिक्स्ड पाथ, सब प्लैनेट्स की पाथ अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है एक ही पाथ में सब मूव कर रहे हैं तो लड़ जाएंगे आपस में। सो एवरी प्लैनेट्स मूव इन देयर फिक्स्ड पाथ, एंड दैट पाथ ऑफ द प्लैनेट, that part of the planet is known as orbit, that part of the planet is known as orbit. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन एंड ऑर्बिट। हो गया, आ जाओ। इट इज ड्राई एंड वेरन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग आएगा आपको थर्ड पॉइंट से समझ में। अगर मैं डायरेक्ट इसका मीनिंग बोल दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई एंड वेरन, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, और जो जो पॉइंट मैं डिस्कस कर दे रहा हूं आई टिक दैट पॉइंट सो दैट यू आर इजिली एबल टू अंडरस्टैंड। फर्स्टली मैंने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया, नाउ आई डिस्कस दिस पॉइंट जिस पर मैंने टिक लगाया। देखो, बिकॉज दिस पॉइंट इज द आंसर ऑफ दिस पॉइंट, ये जो है पॉइंट है ना, ये इसका आंसर है। वाई द मून इज ड्राई, मून को ड्राई क्यों बोला गया है, क्यों ड्राई, अब देखो आंसर, इट हैज नो एयर, यहां एयर भी नहीं है। जैसे अर्थ में तुम लोग पढ़े थे ना, द एयर, अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ए एयर, ठीक है, चारों तरफ से हवा से घिरी हुई है, एक लेयर सी है। एंड वी से इट एज ए एटमोस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर एंड वी से इट एज ए एटमोस्फेयर। सो हियर यू विल सी इट हैज नो एयर, एयर ही नहीं है यहां। लो, हो गया कमाल। आगे सुन लो, और वाटर, वाटर भी नहीं है, एयर वाटर दोनों ही नहीं है। अब बेटा जब एयर वाटर नहीं होगा तो लैंड जो वहां का होगा वो ड्राई तो होगा ही। आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया था ना, डेजर्ट कैसे बनते हैं, डेजर्ट कैसे फॉर्म होते हैं, when that particular area do not receive a rainfall or very little rainfall for a long period of time, कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहां रेनफॉल बहुत कम हुई हो या उस एरिया में बहुत लंबे समय से कभी वाटर हुआ ही ना हो, तो ऐसे एरिया की जो सॉइल है वो डेजर्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है, रेत बन जाता है, क्योंकि जब वो सॉइल में नमी नहीं होगी, वाटर ही नहीं होगा तो डेजर्ट टाइप की हो जाएगी। सो इट हैज नो एयर नो वाटर, नहीं है, तो अब क्या, इट इज ड्राई एंड वेरन, ठीक है। सॉइल कैसी है, बिल्कुल ड्राई है, ड्राई सूख गई है पूरी सॉइल। तो क्या है वहां, जैसे यहाँ क्या होती है, सॉइल वेट है, रेन होती है, तो सॉइल में फर्टिलिटी भी होती है, यू डू कल्टिवेशन आल्सो। और जहां पे सॉइल में ड्राई होगी, देयर इज नो वाटर, तो वो सॉइल वेरन क्या, बंजर होगी, कोई काम की वो जमीन नहीं होगी, उस पर कुछ भी प्लांट्स ये सब हो ही नहीं सकता, बंजर जमीन, ठीक है। और वैसे भी तुम लोग जान रहे हो एयर वाटर है ही नहीं, तो लाइफ इसीलिए तो हो ही नहीं सकता। अब देखो नेक्स्ट है, अब ये दोनों पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। इट हैज नो एयर और वाटर एंड इट इज ए ड्राई एंड वेरन। सो वेरन मीन्स होता है बंजर जमीन, ठीक है, बंजर है क्योंकि वाटर तो है ही नहीं, इट इज ड्राई। नाउ इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, वेरी गुड। जैसे ये पॉइंट देखो कॉमन है, प्लैनेट्स की अपनी लाइट थी, बताओ बताओ, कोई बच्चा जल्दी से बताओ। ओके, गुड आंसर, नो। सो हाउ द प्लैनेट गेट देयर लाइट, दे आर गेटिंग द लाइट फ्रॉम द, किससे मिल रही है लाइट, सन, दे आर गेटिंग द लाइट फ्रॉम द सन, इज इट क्लियर। सो इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी कोई भी लाइट नहीं है। आ गया यहां तक समझ में पूरी क्लास को। नेक्स्ट पॉइंट देखो,
इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट। अब ये बड़ा अच्छा वर्ड इसने बोला है, इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट। ये देखो ये वर्ड अच्छा आया, इट रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट। अब देखो लाइट कब रिफ्लेक्ट करती है, जब उसके बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाता है जिसे वो पार नहीं कर पाती है। इज इट क्लियर? जैसे आपके सामने वॉल है, वॉल पे कोई चीज आप चमकाओगे तो वॉल एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, अब लाइट इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है, जब इसको क्रॉस नहीं करेगी तो ये बैक आ जाएगी, तो ये क्या आएगी, बैक आएगी। इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी हायर क्लासेस में कई एग्जांपल्स के संग समझोगे, बस मैंने ये बता दिया लाइट जिस चीज को पास नहीं कर पाती है उसके रास्ते में एक ब्लॉक सा लग गया तो वो पीछे की ओर बैक हो जाती है, इसी को रिफ्लेक्ट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आई होप, जैसे यही आपकी बुक है, ये बुक है, ठीक है। अब यहां से लाइट जाएगी, नहीं जाएगी, इसमें से पास नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न हो जाएगी, तो इसी को क्या बोले, रिफ्लेक्ट बोल दी। अब क्यों रिफ्लेक्ट हुआ, दैट आई विल एक्सप्लेन यू, बस अभी समझ लो रिफ्लेक्ट मीनिंग क्या होता है। बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें देखो ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिनमें आर पार देखा जा सकता है। इज इट क्लियर? सो लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ओपेक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इतना जान लो ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, जैसे वुड है, स्टील के अलमीरा है, वॉल्स हैं हाउस की, ठीक है। तो वॉल्स को पास करके लाइट बाहर नहीं जाएगी, तो वो दीवार उसको क्या आ गया, उसके वे में आ गया, तो व्हाट्स हैपन, वो क्या हो जाएगी, पीछे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे सिंपल इसका एग्जांपल तुम्हें बताएं, बहुत ही सिंपल, शेडो जैसे हमारे फॉर्म होते हैं, शेडो, परछाई देखी है अपनी, कभी आप लोग देखते होगे हम चल रहे हैं तो हमारे संग लगता है कुछ चल रहा है, वो हमारी परछाई होती है, शेडो। वाई? क्योंकि हमारी बॉडी से लाइट पास नहीं हो पाती है। जब हमारी बॉडी से लाइट पास नहीं होगी, मतलब ये हम खड़े हैं, हमारी बॉडी से पास हो जाती लाइट तो चली जाती, नहीं हो सकती, तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वही हमको अपना शेडो दिखता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखो इट शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स सन लाइट। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच वी डिस्कस अबाउट मून। अब इन्हीं पॉइंट्स को एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss the different phases of the moon, because when we see in the sky, so we all the time think that why the shape of the moon always changes. So this is a basic question which the small kids ask with their teacher or they ask with their parents. Is it clear? So let's do recapitulation of the things what we have learned about the moon, and in the next video we will discuss the different phases of the moon. So I hope you all, in by this technique you all able to understand moon is the natural satellite. Now I hope it is very clear to all of you what is the meaning of a natural. It is not man made, it is present in the nature, ठीक है। So moon is a natural satellite, and out of 8 planet, moon is the natural satellite of which planet? One word question, answer is earth, answer is earth, okay. So see, this way the teacher makes a question from any part of the book, we can make the question. So it can be asked in the exam, moon is the natural satellite of which planet, give the name of the planet, answer is earth. So after that it is dry and barren, these are the conditions on the moon. Next way, it has no air or water. So moon has no air, no water, that is the reason it is dry and barren. Next way, it has no light of its own. Moon is not a star, okay. So
moon does not have its own light. So next, in the next point, so if it does not have a light, then how it shines? कैसे शाइन करता है मून? दिस इज ड्यू टू इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट. अब ये आप आज इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार यू अप्लाई योर नॉलेज. वाई, हाउ द मून shines? It is because of the it reflect sunlight. तो how the light is reflect, ये आपको सोच के रखना है. और नेक्स्ट वीडियो में मैं तो बताऊंगा ही, आपको ये सोचना हाउ इट रिफ्लेक्ट द लाइट, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.